Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Hi, welcome to The Print. We have with us Chirag Paswan, the president of Lok Jan Shakti Party. He has been campaigning for a while now. Chirag, you must have seen a lot of opinion polls are talking about that LJP is not going to do that well and it will be reduced as a vote cutter party. It will not have any serious impact. Well, I would invite you to come and see my rallies and see my road shows. The kind of response that I'm seeing, especially from the young Biharis, it's unprecedented. I have never witnessed anything like this. I've been campaigning with my father for almost 15-20 years now. And I've been in active politics for the past 7 years, but I've never witnessed anything like this. The kind of craze, the kind of aggression I see in the youths of Bihar. So yes, that definitely gives me the confidence that the youth of Bihar is looking forward to the change. And one thing I'm very sure, I don't know whether I'm a vote cutter. I'll not say anything on that because I don't like this terminology of vote katwa because this party was built by my father, and the people who were supporting him a while ago, who were there in his cabinet, are using this terminology, which I'm not very happy about. But having said that, yes, no comments on that. I think the time only will tell. But the kind of support that I'm seeing and the kind of anger that I see for the current Chief Minister, Nitish Kumar ji, that gives me the confidence that yes, not only my party, but yes, Janata Dal United will perform very badly. And in return, my party, Lok Jan Shakti Party, will gain majorly. You said you don't like the term vote cutter, but this is something that the BJP leaders and senior BJP leaders, ministers have been using it. So how do you respond to that, considering you're saying that you're going to form the government with BJP post-elections? Well, I hold no anger or nothing against BJP leaders because one thing I know, that they are voicing the thoughts of my Chief Minister. My Chief Minister is used to this working style. He himself doesn't say anything, directly. He'll never say anything to anybody. But then he makes sure that the other, says things on his behalf. So whatever the leaders of Bharatiya Janata Party are voicing, that is actually the thought of my Chief Minister. And I have no issue with that. But then, yes, definitely, I was a little sad because the leaders who were talking against my party and using terms like vote cutter, as you say, they were using it against my father's party that was built by him for over 2 decades now. My father will not be happy hearing statements like this from his colleague. It was not even a month back that my father was present in cabinet meeting and they were his colleagues there. And they're using terms like this immediately after his demise. So yes, I was sad about that. But then, as I said, I hold nothing against him. This is the first election that you're going to face where your father is not going to be there. How tough do you think it is? Well, emotionally it's very tough. Trust me when I say that, emotionally it's very tough. Every night, because yes, this was the routine for me. Ever since I remember, even as a kid, I was always very excited, if I used to get a gold star or a grade or a trophy or a certificate in my school. So I used to run back home to show it to my father. And my mother, definitely, yes. Even, when I entered in politics, so even after every Jan Sabha or every interview, like right now, we're doing an interview. So had my father been there, I would have gone back to him, and he would have been very excited, knowing that what I did, what were the questions, how did I answer them. Now he's no more, so nobody asked me these questions. So yes, I miss him extremely. But then yes, I have to fulfill his last wish. This was his dream, Bihar first, Bihari first, is what I'm working towards. And yes, he has made me this strong. He's made me what I am today, and I think he continues to give me the strength to fight the current situation. And I know I'll prove myself, I'll make him proud. You have been highly critical of Chief Minister Nitish Kumar, but at the same time, Nitish Kumar and BJP together are in this government. So when you say there is unemployment, when you say that no work has been done, the BJP was also there and you were part of that NDA. Well, it's all about the leadership. It's who's leading the team. If I can give you an example of Indian cricket team, it all depends about the captain. If Dhoni was leading the team, he delivered, he performed. Is the reason why, if he couldn't, the team would have failed.
Similarly, here also, whosoever is leading it, I think the responsibility, he's the one who's supposed to take the responsibility. And especially if the chief minister is like my chief minister, Nitish Kumar ji. Everybody knows his working style. He's one-man army. He's so full of himself. He doesn't discuss. He doesn't take suggestions from anyone. I so many times, when I was with him and my minister was there in his cabinet, I tried to suggest him so many things. He was never open to suggestion. So whosoever knows him, he depends a lot on bureaucracy. And you can ask this to his own party leaders, his own ministers. During policy making, he never discussed this, even with his own party leaders. Forget about alliance partners, forget about Bharatiya Janata Party. I mean, discussing it with BJP, I don't think that would have ever taken place when he doesn't even discuss it with his own party leaders. A number of senior BJP leaders, ministers, they have categorically said that they have no alliance with you. There is no understanding with the Lok Janshakti Party, and Nitish Kumar is the chief minister. But you have been, giving statements that are completely opposite to that. No, I'm not giving any statement that is completely opposite to that. I think rather the chief minister should thank the leaders of Bharatiya Janata Party, because every day they give him this confidence that no, we are with you and we are not with Chirag, we are not with Lok Janshakti Party, every single day, right from a cabinet minister to the national spokesperson. I have only said one thing, that my belief continues with my Prime Minister and his agenda of development. And at a personal level, yes, I have a close bonding with my Prime Minister. Why would I not have? Because my Prime Minister stood by me at a point in time when I was going through the most difficult phase of my life. When my father was in ICU, it was only the Prime Minister who stood by me. He stood by my father till his last breath. Right from the day my father was admitted in ICU, Prime Minister called me twice every single day, till the day my father passed away, every single day. And not only used to ask me about how my father is doing, rather he used to give me suggestions what the doctors were suggesting. That's how involved the Prime Minister was personally. So yes, I mean, I have this personal affection with the Prime Minister, and just by the virtue that I have taken a different path, I can't immediately start disbelieving in my Prime Minister or start criticizing me. And yes, the people of Janata Dal United, especially the Chief Minister, needs to look at these two different parameters. My personal bonding with my Prime Minister is at a different level, but then yes, at a political level, yes, I mean, I have taken a different line. I volunteered. I stood out of the alliance. But then this is how the coalition governments work. I mean, this is how it's been always. If I can give you an example of Manipur, this is what we did in Manipur. We contested against Bharatiya Janata Party, but then eventually my candidate, my MLA from Manipur, he supported the chief minister of Bharatiya Janata Party, and that's how the government was formed in Manipur. So here also, I mean, yes, I might be against your alliance, against NDA, but then right from day one, I've been saying that my MLAs will eventually support for Bharatiya Janata Party Mukhyamantri. You put out a tweet also saying that on all those seats where LJP is not contesting, you should support BJP candidates. Yes, of course, yes. I've said that. And I want Bharatiya Janata Party to perform well, because eventually I'm looking forward to a double engine ki sarkar, and a true double engine ki sarkar. The Bharatiya Janata Party led government at the central level, and the Bharatiya Janata Party led government at the state level. And I'm very confident that Bharatiya Janata Party will perform well, and eventually Bharatiya Janata Party and Lok Janshakti Party together will form the government post 10th November. So who will be the face of that government? Let it be anyone. That doesn't bother me. What about you? No, of course not, because I've said that it's going to be a Bharatiya Janata Party led. So anyone from Bharatiya Janata Party, my MLAs will support them. There are a lot of people who are also talking about that there is tacit understanding between you and RJD and Tejasvi, and probably after the election results are announced, there could be a government with your support as far as RJD is concerned. So allow me to put this on record, and please show this, show it to me again on 10th November. Just in case if I take any other stand, because I know this is for sure, and let me say this categorically on record, that Lok Janshakti Party will not support
anybody's leadership, whether it's anybody from Mahagathbandhan or whether it's anybody from Janata Dal United or whether it's the current Chief Minister Nitish Kumar ji, we're not going to support anyone else except the Chief Minister candidate from Bharatiya Janata Party. A lot of criticism that comes your way is the fact that you are not someone who has faced who has done some groundwork. As far as your father is concerned, he was very grounded, connected with people. So how do you look at that criticism? Well, I think the decision that I've taken answers to all those criticism. If I was to walk on a red carpet, I think the alliance that I was in, had I been if I would have continued to be the part of that alliance, I think the alliance would have performed fairly well. And whatever seats they would have given me, I think my strike rate, just like Lok Sabha, would have been really good. In Lok Sabha, we had 100% strike rate, and I think we would have performed almost similar in that alliance had I been the part of it. But then I myself opted for a path of struggle. बिहार पे राज करने की नहीं, बिहार पे नाज करने की मेरी लड़ाई है. दैट्स माई टैग लाइन ऑल्सो. अगर मुझे बिहार पे सिर्फ राज करना होता तो मैं जिस अलायंस में था मैं आराम से रहकर जो भी सीटें मिलती और अगली सरकार में शायद मेरा प्रतिनिधित्व भी बेहतर होता. पर मेरी लड़ाई बिहार पर नाज करने की है, बिहारी अस्मिता की मेरी लड़ाई है. द प्राइड ऑफ बिहार इज़ व्हाट आई एम फाइटिंग फॉर. आपको क्या लगता है, आपने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि नीतीश जी मतलब जेल के अंदर होंगे अगर आपकी सरकार आएगी, इसका से क्या मतलब, एग्जैक्टली क्या मतलब है? 7 निश्चय में जो भ्रष्टाचार हुआ है, एंड प्लीज़ आप ये माइक लेकर किसी भी बिहारी के पास जाइए और पूछिए कि क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, क्या 7 निश्चय की योजनाएं धरातल पर पहुंच गई, क्या अभी भी हर गांव में नली गली बन गई, क्या हर घर में नल का जल पहुंच गया? भैया, बाढ़ के पानी को घर तक पहुंचाना नल जल योजना का हिस्सा नहीं हो सकता ना. तो आप मुझे बताइए कि क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ इन योजनाओं में, और अगर हुआ है तो कोई तो जिम्मेदार होगा. माई चीफ मिनिस्टर सेज दैट ही इज़ गॉट अ पॉलिसी ऑफ zero tolerance against corruption, against crime, against communalism, and he has compromised at all the 3 levels, starting from corruption. Is the reason why I gave that statement कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी जेल में जाएंगे, बिकॉज मेरे साथ मेरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने इस बात को बोला है कि 7 निश्चय की जांच करवाई जाएगी, जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, एंड whosoever is found guilty, even if it's the chief minister of my state, the current chief minister of my state, नीतीश कुमार जी, उनको सज़ा होगी, उनको जेल जाना पड़ेगा. अनएम्प्लॉयमेंट और एक प्रोहिबिशन का जो इशू है उसके बारे में बहुत बात हो रही है. कहा जा रहा है कि प्रोहिबिशन तो गवर्नमेंट ने किया, लेकिन अभी भी होम डिलीवर हो रही है अल्कोहल. अच्छा, अल्कोहल आपने अनएम्प्लॉयमेंट से शुरू किया तो जी, मैं confused दोनों हो के गया. ऊपर. हाँ, नहीं, सो डेफिनेटली यस. आई मीन लिकर अभी भी अगर आप देखें तो अब तो और ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो गई. जितने रसूखदार लोग हैं, मुझे शायद ही कोई बिहारी बिहार में ऐसा मिला होगा. मुख्यमंत्री अगर 10 भी ऐसे लोगों को मेरे सामने खड़ा कर दे तो मैं मान जाऊंगा. शायद ही कोई ऐसा बिहारी मिला होगा जो पहले शराब पीता हो और अब नहीं पी रहा हो. अब तो बल्कि उसके लिए और आसान है. पहले तो उसको फिर भी जाकर स्ट्रगल करके मार्केट से बाजार से लाना पड़ता था, अब तो घर पे फ़ोन करने से उसको मिल रही है. और जिस तरीके से स्मगलिंग हो रही है, तस्कर पैदा हो रहे हैं बिहार में, जो इस व्यवसाय में जुड़ रहे हैं. रोज़गार तो आप देते नहीं हैं, तो वैकल्पिक प्रावधान लोगों का तस्करी ही बन रहा है. वो इस प्रोफेशन में जुड़ रहे हैं. और मुझे बता दीजिए ना कि कौन सा ऐसा रसूखदार है जिसको शराब चाहिए और उसको नहीं मिल रही हो, और किसको इसकी जानकारी नहीं है. मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड के हर एक मंत्री को इसकी जानकारी है, हर एक मंत्री को, और मुख्यमंत्री को भी होगी तो भी मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा. और जैसे 7 निश्चय की हम लोग जांच करवाएंगे, वैसे ही शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए. देखिए, लेट मी से दिस वेरी क्लियर अगेन, इससे पहले कि कोई इसको भ्रम फैलाएं, मैं शराबबंदी के साथ हूँ. 2000 अगर आप उस वक्त की भी बात करें, मुझे लगता है शायद 2016 के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो मुख्यमंत्री ने शराबबंदी का ये फैसला लिया था, और उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे. मुख्यमंत्री ने राजद और कांग्रेस के साथ रहकर ये निर्णय लिया था, और मैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ था, विपक्ष में थे हम लोग. मैंने उस वक्त भी इनका समर्थन किया था. उस वक्त भी मैंने कहा था कि फैसला अच्छा है, विपक्ष में होने के बावजूद मैंने इनका समर्थन किया था. पर वो एग्जीक्यूट तो हो, धरातल पर तो उतरे. सिर्फ कहने से कि हमने शराबबंदी लागू कर रखी है, आप स्टिंग कीजिए, देखिए कैसे शराब आपको धड़ल्ले से बिहार में मिलेगी, खुलेआम आपको बिहार में मिलेगी. और दे मुख्यमंत्री इसका जवाब कि क्यों मिल रही है. अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा है जो आपने देखा होगा. तेजस्वी यादव ने 10 लाख जॉब्स बोला है कि जिस दिन वो आएंगे पावर में उसी दिन कैबिनेट में डिसीजन लेंगे. आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कितना बड़ा है इस इलेक्शंस के लिए? बड़ा मुद्दा है, और बड़ा मुद्दा होना चाहिए. इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए.
हम लोग यहाँ बिहार में एक विडम्बना ये भी रही है, थैंकफुली अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला कि चुनाव आते आते तक मुद्दा बन जाता है हिंदू मुसलमान, मुद्दा बन जाता है अगड़ा पिछड़ा, जातीयता हावी हो जाती है, जबकि मुद्दे यही होने चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट पर बात होनी चाहिए। भाई मुख्यमंत्री ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए कि उनके रहते हुए कारखाने नहीं खुल सकते। क्यों? क्योंकि बिहार लैंडलॉक्ड है, समुंदर का किनारा नहीं है। पंजाब में भी नहीं है भैया समुंदर का किनारा, हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो क्या कारण है कि भैया बिहार में कारखाने नहीं खुल सकते? जो बंद पड़े कारखाने आप उनको तो कम से कम खोलिए। आई सजेस्टेड टू माई चीफ मिनिस्टर, आई टोल्ड हिम, आई सेड दैट वी मस्ट फॉर्म अ टीम ऑफ यंग IT प्रोफेशनल। जो जितने भी बंद पड़े कारखाने हैं वो फाइनेंशियली वाइबल, वो प्रोजेक्ट कैसे, उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। लास्ट टाइम मेरे चीफ मिनिस्टर ने कब इन्वेस्टर समिट बुलाया था मुझे नहीं याद। इन्वेस्टर समिट बुलाएं और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पर होना चाहिए, क्लियरेंसेज मिले। मुझे पता है कि कितने ऐसे निवेशक हैं जो बिहार में निवेश करना चाहते हैं, बट उनकी इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है जब तक वो डिफरेंट विभाग से NOCs लेते हैं, क्लियरेंसेज लेते हैं। तो ये सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। और लैंड रिफॉर्म बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार में भैया ज़मीन ही नहीं है देने के लिए। तो जब आपके यहाँ ज़मीन ही नहीं होगी निवेशकों को देने के लिए, तो आप कैसे कारखाने खोलने की? तो इन सारी चीज़ों पर मैं आंकड़े नहीं दे रहा अपनी पार्टी की तरफ से। मुझे नहीं पता कि तेजस्वी का क्या आधार है जब वो बोलते हैं 10 लाख रोज़गार देंगे, कैसे देंगे मुझे नहीं पता। या भारतीय जनता पार्टी जब 19 लाख का वादा करती है, मुझे नहीं पता कि आधार क्या है। बट मैंने ये ज़रूर कहा है कि इन सेक्टर्स पे हमें काम करना चाहिए। इन्वेस्टर समिट करें, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज दें। रिलीजियस टूरिज़्म एक बहुत बड़ा अनएक्सप्लोर सेक्शन है जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। आज सुबह मैं सीतामढ़ी गया था, माता सीता का आशीर्वाद लेने में गया था। मेरी खैर व्यक्तिगत श्रद्धा तो है ही, मैं चाहता हूँ कि माता सीता का अयोध्या की तर्ज पर एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो, पर उसके पीछे मेरी श्रद्धा के साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन की मेरी सोच भी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की मेरी सोच है कि भैया जब यहाँ पर आप इतना भव्य मंदिर बनाएंगी तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा, यहाँ पर होटल्स आएंगे, रिजॉर्ट्स बनेंगे, एजुकेशनल हब्स उसके आसपास खुलने लगेंगे, MNCs आने लगेंगी, तो स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलने लगेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि उसको अयोध्या के साथ एक कॉरिडोर, सियाराम मैंने उसका नाम दिया, एक कॉरिडोर बने 6 लेन का, ताकि जो भी अयोध्या जाए भगवान राम के दर्शन करने, माता सीता के दर्शन करने। मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, मैंने कहा मेरे लिए तो आस्था का सवाल है, मैं मानता हूँ कि भगवान राम माता सीता के बिना अधूरे हैं, माता सीता भगवान राम के बिना अधूरी हैं। और भारत है अनंत श्रद्धाओं का हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, लोगों की श्रद्धाएं हैं। इसी तरीके से रिलीजियस टूरिज्म में भगवान महावीर की जन्मस्थली है, लछवाड़ है, उसको आप विकसित कर सकते हैं। गया को आप वर्ल्ड क्लास सिटी आप बना सकते हैं। वैशाली है या गुरु गोविंद सिंह जी का है पटना साहिब को, उसको आप विकसित कर सकते हैं। कई ऐसे सूफी संत रहे हैं यहाँ पर जिनकी मज़ारों को आप एक सर्किट के साथ जोड़ सकते हैं। इससे पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा क्रिएट होंगी। तो तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको अगर हम लोग एक्सप्लोर करें, जिनको अभी तक छुआ भी नहीं गया, उसको एक्सप्लोर करें। जितने सैंक्शन पोस्ट हैं, लगभग 4.5 लाख के आसपास सैंक्शन पोस्ट हैं जो कि रिक्त पड़े हुए हैं, उन पदों को आप भरिए ना। सबसे पहले उसमें डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, शिक्षक हैं, उन पोस्ट को आप भरिए सबसे पहले। तो 4.5 लाख तो रोज़गार आपके हाथ में तैयार है। तो मेरा मानना है कि अगर इस सारे सेक्टर्स में हम लोग काम करें तो कई ऐसे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक आपका स्टेटमेंट है जिसके बारे में काफ़ी बात हुई, जिसमें आपने कहा मोदी जी मेरे लिए राम की तरह हैं और मैं हनुमान। तो अगर इलेक्शन के बाद एक ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ मोदी जी आपको बोलें कि हमें सपोर्ट करो जिससे कि नीतीश कुमार फिर से CM बन सकें, तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं देखिए, मैंने कहा कि मेरे व्यक्तिगत संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं और मैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे किसी ऐसे धर्म संकट में डालेंगे, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री को दोबारा समर्थन करना। पापा ने मुझे अपने आखिरी दिनों में एक बात बोली थी कि अगर तुम्हारी वजह से गलती से मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो तुम आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से बिहार 5 साल और पीछे चला गया। तो मैं ये गलती कभी नहीं कर सकता, इसलिए मौजूदा मुख्यमंत्री का समर्थन करना तो दूर की बात है, उनका प्रत्याशी हर जगह हारे, दिन रात में उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे प्रत्याशी तो जो जीत रहे हैं, जो जैसा कर रहे हैं वो तो अलग है, बट उनका प्रत्याशी हारे। मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने कहा था इस बात को कि एक एक वोट जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को जाएगा वो आने वाले समय में मेरे बच्चों को पलायन करने पर मजबूर करेगा। आज की भी परिस्थिति देख लीजिए भैया, क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। कोटा में अगर आप देखेंगे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, वहाँ पर शैक्षिक संस्थानों के अधिकांश ओनर्स बिहारी, पर व्यवस्था
राजस्थानी, क्यों हम लोग पटना को एजुकेशनल हब नहीं बना सकते, क्यों ये शिक्षा प्रणाली यहाँ पर नहीं दे सकते। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है विकास की, और इनको समर्थन असंभव, तभी मैंने हैशटैग भी शुरू किया है असंभव नीतीश। एक प्रश्न और, आपने देखा होगा कि कई पोस्टर्स जो बीजेपी अब लेके आई है उसमें मुख्यमंत्री जी की फोटो नहीं दिख रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी खुद भी डिस्टेंस कर रही है अपने आप को? करना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो और वो जीतें, क्योंकि जितनी बार वो मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं या उनके साथ दिखते हैं उतनी बार वो अपने वोटर्स के बीच वो गलत संदेश दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो वोटर है वो विकास की सोच के साथ जुड़ा हुआ है, और वो वोटर जानता है कि मुख्यमंत्री के रहते हुए प्रदेश में कभी विकास आ नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं वो अपने वोटर्स में वो गलत संदेश दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा, मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया कि मेरे भाजपा के साथियों को समय रहते अगर ये ज्ञान प्राप्ति हुई कि भैया मुख्यमंत्री से हम दूरी बनाएंगे, तो कम से कम उनको भाजपा की सीट पे, क्योंकि जदयू की सीटें तो देखिए हार रहे हैं, दहाई का भी आंकड़ा ये लोग पार करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जदयू के लिए, पर भाजपा की सीट, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, मैंने भी समर्थन दिया, मैंने ये भी ट्वीट किया कि भाजपा के तमाम प्रत्याशियों को लोजपा के मेरे साथी उनका समर्थन करें, तो मैं चाहता हूं कि भाजपा का स्ट्राइक रेट अच्छा रहे, तभी भाजपा लोजपा मिलकर सरकार बना पाएगी। वन लास्ट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव सीन दैट इन 2010 एंड 2015 जो एलजेपी है 3 और 2 इतनी सीटें वो ला पाई, तो कई लोगों का ये मानना है कि आपने बहुत बड़ा गैम्बल लिया, लेकिन उस तरह का ग्राउंड वर्क अभी तक प्रिपेयर नहीं कर पाए एज अ पार्टी। 10 तारीख को समय कितना है, हाथ कंगन को आरसी क्या, अपने आप प्रमाण सामने आ जाएगा। और ईमानदारी से मेरी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी की सोच है, और मैं स्वतंत्र हूँ अपनी पार्टी के लिए निर्णय लेने के लिए, मेरे पार्टी के विस्तार के लिए। हर कोई मुझे कहता है कि भैया आपकी तो 4-5% की पार्टी है, 4-5, भैया 40 से ज़्यादा मुझे सीटें लड़ने के लिए नहीं दोगे तो मेरी पार्टी का प्रतिशत बढ़ेगा कैसे? मुझे अगर अपने पार्टी का विस्तार करना है, मुझे अपने पार्टी को स्प्रेड आउट करना है, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ूं। और पापा ने हमेशा कहा था कि नेता के पास नीयत और नीति का होना बहुत ज़रूरी है। नीयत उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं, उन्हीं की नीयत को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ, और नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर मेरा विश्वास है कि जनता के बीच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लेकर जब मैं जाऊंगा तो जनता का समर्थन मुझे मिलेगा। और जो मुझे मेरी सभाओं में देखने को मिल रहा है, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि बिना मुझे बताए हुए रैंडमली मेरी किसी भी रैली में आप जाइए, मेरी किसी भी रोड शो के विजुअल्स आप उठा के दिखाइए, अपने आप पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ। बस एक लास्ट प्रश्न, विमेन वोटर्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड नीतीश कुमार, इट हैज़ बीन सिन, एंड नाउ ऑल्सो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि उनको पूरा भरोसा है कि विमेन वोटर्स इंश्योर करेंगे उनकी विक्ट्री हो। क्यों इंश्योर करेंगे भैया? आपने विमेन के लिए किया क्या? आप मुझे बताइए। आप महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सम्मान देना सिर्फ बातें करने से नहीं होगा ना, सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा ना। आपके मंच में मुझे कितनी महिलाएं दिखती हैं, कितनी महिला नीतियां बनाने में आपके साथ शामिल रहती हैं। आप मुझे बताइए आपकी कोर टीम में कितनी महिलाएं हैं, आपकी किचन कैबिनेट में कितनी महिलाएं हैं जो आपके साथ बैठकर नीति बना रही हैं। और आपने सबसे बड़ा, जिसको आप अपना ब्रह्मास्त्र बोलते हैं महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए, वो शराबबंदी था। भाई आज की तारीख में वही महिलाएं परेशान हैं कि जो शराब पहले उनके हस्बैंड को सस्ते रेट पे मिलती थी, आज वो दुगने दाम पर खरीदनी पड़ी उनको स्मगल किए हुए माल की वजह से। शराब तो वो आज भी पी रहे हैं, पर जो पैसे कल 4 पैसे कल घर में बचते थे वो आज एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो क्यों महिलाएं खुश होंगी? और यही मैंने कहा, मुझे ये सोच ही नहीं समझ में आती वोट बैंक बनाने की। मैं इसीलिए उनके साथ कभी एक पेज पर नहीं रह पाया, मेरी वेवलेंथ उनके साथ कभी मैच नहीं कर पाई, क्योंकि वोट बैंक बनाने की राजनीति मेरी समझ में नहीं आती। फ्री बीज दे देंगे भैया, किसी की हत्या होगी तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। आप पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात कीजिए ना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए कि महिलाओं के हाथ में कैसे पैसा आए। वो ऐसा कौन सा काम करें, रोजगार करें या व्यवसाय करें कि उनके हाथ में पैसा है। आप उनको इंडिपेंडेंट बनाइए ना, उनको वोट बैंक क्यों बना रहे हैं आप? Thank you so much for being with us, Chirag, and good luck for the elections. Thank you very much. This is Neelam Pandey for The Print. Keep following our YouTube channel for more updates.